पण मी तुम्हालाच करेन. Okay, thank you. Can you see my screen, Akshay? Yes, Ashmit. Okay, okay. Just hold for 1 minute. Hello, Nilofer. Vishnu has joined from USA. Yes, yes. Okay, 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 okay. Yes, sir. Amit Mehta, sir. Good evening. Evening. Good evening, sir. How are you? Fine. Okay, Amit sir, will you give a short introduction about yourself? Sir, I'm a wholesale distributor for abrasive products in So currently you are based in location Mumbai. Mumbai. Okay, Mumbai. Where it is exactly? It is in Masjid Nagdeli. Bandar. Okay, okay. And what you're dealing in Tally as well, right? Yeah. Okay, okay. And what type of customer do you have currently? Means it's a small. No, no. Actually, I'm not. I'm using Tally. Okay, you're using Tally. Okay, okay, okay. He's a tele user. Okay, fine. Okay, okay. Anyone is joining Akshay from your side? Mr. Gopal has joined already. Okay, hello, Gopal sir. He can hear us, so he'll just watch the product. Then we'll have a call with him. Okay, 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 okay. And Bansal sir? Mr. Rajiv Bansal is from Glassdoor. Yes. From Glassdoor. Okay. Okay, fine. I will do one thing. I will start the session, and after the session, we will discuss about the queries. Okay. Sure. Okay. Yeah. Okay. Fine. Hello. Good evening, everyone. My name is Asmit Joshi, and I'm working in Secura Group from last 2 years as a sales manager. So we are a part of Sanda Group. So it's a 14 years old company, and we have diversified our business in the field of wellness, media, and technology. So from 2011, we have came into the IT sector from last 10 years, and we have our own hotels in Goa, like Doodh Sagar Spa Resort, Baywatch Resort as well. So these are the overview of the presentation. Today we will discuss about the problems which small medium enterprises are facing currently. After we will discuss about the Secura Guard solution and what are the benefits you will get if you use a Secura Guard and what are the pricing of the Secura Guard which we are selling in the market currently. Okay. So the problem data risk all small medium enterprises are facing is the digital resolution. Business are creating, storing and sharing large amount of data. अभी अगर देखा जाए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से अगर एक एमएनसी तक एवरीडे डेटा जनरेट होता रहता है बिजनेस में जनरेट करते हो वर्ड वीडियोस पावर पॉइंट एवरीथिंग और वो एक किसी जगह पे सेव करते हो कोई ड्राइव पे सेव मैंने आपसे परसों पूछा था ना, मैं अर्जेंट में मंगवा दूंगा, आप पेमेंट जमा करवा दो, मैं कल परसों दे दूंगा आपको पक्का जी। हेलो आज तो 10 ही है जी अभी फिलहाल। हेलो बंसल सर ग्लोसी में दे दूं, ग्लोसी में चलती है क्या आपको? Mr. Bansal, you just please mute yourself. I request. Yes, Ashwin, you can continue. Okay.
सो लार्ज नंबर ऑफ डेटा जनरेटिंग एवरी डे इन द बिजनेस। अगर आप देखा जाए तो एक एक्सेल से, एक वर्ड से, एक पीपीटी पावर पॉइंट से लेकर एवरी डे जनरेट होते रहता है बिजनेस में डेटा। तो वो आप कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, कोई डेस्कटॉप पे स्टोर करता है, तो कोई ड्राइव पे स्टोर करता है, कोई मेल पे स्टोर करता है। तो उसके लिए क्या हुआ कि कंपनी ने सीआरएम अडॉप्ट करना चालू कर दिया। आफ्टर दैट अडॉप्टिंग द सीआरएम, देन ऑल्सो द डेटा ऑफ लीकेज हैज बीन ऑल्सो स्टार्टेड। So after that, the company has started adopting ERP as well. In the ERP, there are many versions as well, like ERP 9.0, 9.1 also they are started adopting. तो ये सब अडॉप्ट करने के बाद भी डेटा लीक होने के चांसेस उतने बढ़ने लग गए। सो आफ्टर दैट द कंपनी हैज स्टार्टेड अडॉप्टिंग टैली ऑल्सो। टैली इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू डू अ ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। बट ये सब सॉल्यूशन यूज करने के बाद भी एक प्रॉब्लम कॉमन था कि डेटा लीक होने का चालू था, मतलब वो स्टॉप नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या किया कि बिजनेस कंपनीज ने डेटा ड्राइव पे रखना चालू किया। आफ्टर दैट देयर आल्सो दे आर सफरिंग फ्रॉम द ransomware attack and this call kind of attack. So that's why we have introduced software known as SecureGuard in the market for the small medium enterprises. So 43% of the cyber attacks targeted small medium enterprises. अभी साइबर जो अटैक होते हैं वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे क्यों होता है? सबसे फर्स्ट रीजन होता है कि उनके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता और उन लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। तो अटैकर्स क्या करते हैं, जानबूझ के उन लोग को ही टारगेट करते हैं। उन लोग ड्राइव पे डेटा रख देते हैं और ड्राइव पे डेटा रखने के बाद अटैकर्स को ईजी हो जाता है वो डेटा अटैक करने के लिए। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उन लोग रैंसमवेयर अटैक करके आपका पूरा डेटा उन लोग एनक्रिप्ट कर देते हैं। And after that, 82% of the Indian small medium enterprise were targeted by ransomware attack. अभी इंडिया के जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वो 82% टारगेट हो रहे हैं रैंसमवेयर अटैक से। बिकॉज वो ही सेम ड्राइव पे डेटा रखने से, अगर आप कहीं पे भी अगर आपका सर्वर पे डेटा रखते हो, आप डेटा रखते हो बट उसको 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। And after that, 70% of the employees admit to taking company data before departing. For example, if I am working in your organization for 2 to 3 years, तो मैं सब आपके क्लाइंट्स के जितना भी डेटा है, कस्टमर का डेटा, उनके इंटरेक्शन करके मेरे पास पूरा उनका डेटा आ जाता है। तो जब भी मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ूंगा तभी क्या करूंगा, तभी वो पूरा डेटा में नेक्स्ट कंपनी में लेके जाऊंगा, नेक्स्ट कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको सेल करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कंपनी का डेटा लीक हो गया। मीन्स एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कोई पेन ड्राइव में डेटा ले लेता है, कोई मोबाइल में लेता है, कोई मेल पे ले लेता है, बट कंपनी को पता नहीं चलता। कंपनी को लगता है हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उसके नंबर ऑफ कॉपीज कितने जनरेट हो रहे हैं वो आपको पता नहीं। सो हाउ इज योर बिजनेस डेटा एट रिस्क? आपका बिजनेस डेटा रिस्क पे कैसे है? सबसे फर्स्ट है साइबर अटैक। साइबर अटैक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि ड्राइव पे डेटा रखने के बाद आप सिर्फ ड्राइव पे डेटा रखते हो, पर रखने के बाद उसको 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वो होता है सबसे फर्स्ट साइबर अटैक्स। एम्प्लॉयज एक्सीडेंटली लीकिंग इंफॉर्मेशन। अभी ये क्या होता है, ये एक स्पाई प्रूफ टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी आप गूगल का इस्तेमाल बहुत करते हो आजकल के वर्ल्ड में, तो गूगल का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक EXE डाउनलोड हो जाता है, और EXE डाउनलोड होने के बाद वो जो सॉफ्टवेयर है आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है, जितना भी आपके मशीन में डेटा है उसका पूरा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाता है, और सामने वाले के पास पूरा उसका कॉपी चला जाता है। बट हम लोग उस वक्त ध्यान नहीं देते, हम लोग क्या कहते हैं कि एक से हम लोग इग्नोर करके हमारा काम करते रहते हैं। बट वो ही एक स्पाई प्रूफ सॉफ्टवेयर आपका बिजनेस का पूरा डेटा लीक कर देता है। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयज मिसलीनियसली स्टीलिंग डेटा। जैसे कि अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि 70% एम्प्लॉयज ऐसा करते हैं कि आपका बिजनेस का जो भी डेटा है वो छोड़ने से पहले पूरा हमारे पास ले लेते हैं, और पूरा उनके पास डेटा लेने के बाद वो कंपनी छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे डेटा वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये 3 तरीके हैं जिससे आपका बिजनेस का डेटा प्रोबेबिलिटी बढ़ता है कि लीक होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। So how your Tally business data can be compromised? Unauthorized access to Tally data files locally stored. अभी unauthorized access होता है, कोई भी कहाँ से किधर से भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए नो कंट्रोल यूजिंग ऑफ टैली ERP सॉल्यूशन। टैली ERP सॉल्यूशन पे किसी का कंट्रोल नहीं। अगर कोई कंपनी का ओनर है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए वो डेटा पे, तब जाके आपका डेटा 100% सेफ रहेगा। बट यहाँ पे टैली में डेटा होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। Access to tally data from unsecured networks. Unsecured network means what? For example, आजकल का वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो चले, तो मैं घर से भी आपका लॉग इन कर सकता हूँ टैली का।
अगर टैली में एक डेटा फोल्डर होता है, अगर वो मैंने घर से कॉपी कर लिया, पेन ड्राइव में रख लिया, और नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करने के बाद वहां पे अगर मैंने टैली में डेटा पेस्ट किया, तो इजीली मुझे सब एंट्रीज दिख जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उससे आपका डेटा लीक होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। एंड अलाउिंग एम्प्लॉयज टू यूज ओन डिवाइसेस दैट कुड बी सब्जेक्टेड टू वायरस, बग्स एंड मालवेयर। भी इससे क्या होता है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंपनी क्या कहती है कि आप आपका खुद का लैपटॉप यूज कीजिए, आप खुद का पेन ड्राइव यूज कीजिए, हार्ड डिस्क यूज कीजिए। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका डेटा का लीक होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं, और उतना प्लग करने के बाद उतने उनसे वायरसेस भी आ जाते हैं, तो उससे अपना आपका डेटा उतना 100% लीक होने के प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं। सो द बेनिफिट्स व्हाई यू नीड अ सिक्योर गार्ड। अगर आपने हमारा सिक्योर गार्ड यूज किया तो उसके बेनिफिट्स क्या है। नाउ आई विल शो यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योर गार्ड एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर टैली डेटा। मीन्स टैली डेटा ही नहीं है, हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है टैली डेटा। अगर आप कोई भी CRM यूज कर रहे हो, ERP यूज कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, अगर कोई भी आपका कॉमन बिजनेस डेटा है जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब फाइल्स हो गए, तो उसको भी ये सिक्योर गार्ड प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है थेफ्ट प्रूफ। थेफ्ट प्रूफ मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन में आपका छोड़ने के बाद मैं पूरा डेटा मेरे पास कॉपी कर लेता हूँ, मेल पे कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे या तो पर्सनल आईडी पे पूरा ले लेता हूँ, और आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ देता हूँ, तो वहां पे जाके एक्सेस कर लेता हूँ मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा वहां पे इजीली एक्सेस करता हूँ, और वहां की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में उनको सेल करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो आपके इंटरनल एम्प्लॉयज है वो ही आपका डेटा लीक कर रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं थेफ्ट प्रूफ बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट है रैंसमवेयर प्रूफ। इससे क्या होता है कि अगर आपने आपका डेटा ड्राइव पे रख लिया, तो हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिससे आपका डेटा ड्राइव पे रखने के बाद उसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक नहीं होगा। ये हम लोग ने नया फीचर डेवलप किया हुआ है। तो आप इजीली आपका डेटा ड्राइव पे या क्लाउड पे इजीली रख सकते हो, जिससे आपका डेटा 100% रैंसमवेयर प्रूफ रहेगा। थर्ड इज स्पाई प्रूफ। स्पाई प्रूफ जैसे कि मैंने अब भी आपको बताया कि आप जब भी गूगल का इस्तेमाल करते हो, तो एक EXE डाउनलोड होने के बाद आपका डेटा पूरा कॉपी पेस्ट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो हमारे इसमें अगर आप सिक्योर गार्ड यूज करोगे, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट आप सिक्योर गार्ड में नहीं ले सकते, बिकॉज वो अलाउ नहीं करता आपको लेने के लिए। फोर्थ बेनिफिट इज डिजास्टर एंड मिस्टेक प्रूफ। इसमें क्या होता है कि आप कभी कभी आपका लैपटॉप कभी गुम हो जाता है, या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका पूरा डेटा चला जाता है और डिलीट हो जाता है, तो इस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको 5 GB तक क्लाउड पे बैकअप स्पेस प्रोवाइड करते हैं, 5 GB से भी ज्यादा करते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे तो इससे क्या होता है कि आपका जितना भी बिजनेस का डेटा है, जितना भी आपके लैपटॉप में डेटा है, वो पूरा हम लोग आपको ऑनलाइन ड्राइव पे रख के देते हैं। और ड्राइव पे सिर्फ रखते नहीं है, उसको 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट भी करते हैं, ताकि उसके ऊपर अटैक नहीं हो जाए। अगर कल आपका लैपटॉप कहीं घूम गया या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से की वजह से कुछ आपका डेटा पूरा चला गया, तभी भी आपके पास एक बैकअप कॉपी रहेगा, जिससे हम लोग आपको पूरा आपका डेटा रिटर्न करके दे देते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड। सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड मीन्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई डेटा होता है कि वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही चाहते कि वो ही एक्सेस करे। तो वो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, उस वक्त आप वो डेटा आपकी मशीन में हाइड कर सकते हो। हाइड करने के बाद उसमें प्रोटेक्टेड पासवर्ड रख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है वो कोई इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा, जब तक वो पासवर्ड एक्सेस नहीं करता तब तक। तो आजकल कैसा होता है कि अगर आपने विंडोज में देखा या तो मोबाइल में देखा, तो हाइड अनहाइड इजीली हो जाता है, और इसका नॉलेज आपको यूट्यूब पे विद इन 1 मिनट भी मिल जाता है। तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपका फोल्डर आपने कहाँ रखा हुआ है। बट यहाँ पे अगर आपने एक बार हाइड किया और उसको प्रोटेक्टेड पासवर्ड रख दिया, तो आपको ये डेटा मिलेगा नहीं सर्च करने के बाद भी। और आप उसको प्रोटेक्टेड पासवर्ड, अगर किसी ने उसको एक्सेस किया तो ही जाके वो इंसान डेटा एक्सेस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा वो डेटा एक्सेस। सो नाउ आई विल शो यू द प्रोडक्ट सिक्योरा गार्ड। किसको यहाँ पे कहीं कुछ डाउट है, अभी मैंने जो आपको सब एक्सप्लेन किया उसमें कहीं आपको कुछ पूछना है या कुछ प्रोडक्ट चालू करने से पहले। अमित सर, बंसल सर, गोपाल सर, विष्णु सर। नो सर, क्या भी डाउट नहीं। ओके ओके फाइन, थैंक यू। फिर आई विल शेयर।
Hello, Akshay. Yes, Ashmit. Will you share the screen? I will explain the email security. Okay. No problem. Yeah, I can share. ये हमारा प्रोडक्ट है, ये एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। देखिए ये आपका यूजर इंटरफेस है। ये अभी ईमेल सिक्योरिटी फीचर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसमें क्या होता है कि ईमेल से भी बहुत सारे डेटा लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे कोई मेल फॉरवर्ड किया, अगर वो मेल मैंने पर्सनल आईडी पे लिया या तो किसी थर्ड पर्सन को फॉरवर्ड किया विदाउट योर परमिशन, तो वो कैसे डेटा लीक होने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकते हैं। बट इसमें कैसे है कि इसमें आप प्रॉपरली उनको राइट्स दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अलाउ कॉपी, अलाउ फॉरवर्ड, शेयर, अलाउ स्क्रीनशॉट, अलाउ एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होता है ना कि मैं मेल सेंड करने के बाद अगर आपको मैंने अलाउ कॉपी का राइट दिया या अलाउ फॉरवर्ड का राइट दिया, तो ही आप आगे वाला पर्सन वो मेल फॉरवर्ड कर सकता है या कॉपी कर सकता है, वरना वो कॉपी नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको बिना पूछे किसी ने भी अगर मेल फॉरवर्ड करने का ट्राई किया तभी भी वो इंसान मेल फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आपको मेल डिलीट भी करना है तभी भी आपको मेरे से परमिशन लेना पड़ता है, या तो अगर आपको मेल किसी का प्रिंट लेना है तभी भी आपको मेरे से परमिशन लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई डेटा लीक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये अप्लाई कंटेंट एक्स्ट्रा प्राइवेसी राइट्स में ये आ जाता है। अगर आपको नॉर्मल मेल भेजना है तो आप नॉर्मल मेल भी भेज सकते हो। अगर आप कोई मेल भेज रहे हो तो मेल भेजने से पहले आपको वो पूछेगा कि अगर आपको एनक्रिप्ट मेल भेजना है या विदाउट एनक्रिप्ट मेल भेजना है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जितना भी बिजनेस का डेटा है या तो आपने कोई कंटेंट लिखा होगा मेल पे तो वो भी उनको दिखेगा नहीं। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्मल मेल का, तो आप नॉर्मल मेल भी भेज सकते हो या पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल भी भेज सकते हो चाहिए तो। मतलब अगर मैंने मेल किया तो आपको हम लोग पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी देने के बाद अगर आपने वहां पे ओटीपी एंटर किया तभी जाके आप वो मेल एक्सेस कर सकते हो, वरना वो मेल आप एक्सेस नहीं कर सकते। अक्षय यू कंटिन्यू नाउ। Okay, thank you, Ashmit. So now I will start with the Tally data protection. Tally का डेटा किस तरह से हम सिक्योर में प्रोटेक्ट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। So generally in our system we keep our Tally data either in C drive or D drive. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा Tally का जो डेटा है वो मैंने D ड्राइव पे रखा है और ये मेरा डेटा का फोल्डर है। तो मुझे ये फोल्डर को प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिक्योरा के सेटिंग्स में वी हैव एन ऑप्शन कि आई कैन एक्टिवेट द फोल्डर लॉक फीचर। मतलब वो फोल्डर को मैं इस तरह से लॉक करूंगा कि वो फोल्डर पे मैं काम कर सकता हूँ पर वो किसी को विजिबल नहीं होगा सर फोल्डर। सो आई विल शो यू हाउ इट्स डन। सो विच एवर फोल्डर आई वांट टू प्रोटेक्ट, जो भी फोल्डर मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरे सिस्टम में, खाली टैली डेटा ही नहीं, कोई भी दूसरा फोल्डर। सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट द प्लस बटन, गो टू एनी डेटा विच आई वांट टू प्रोटेक्ट। आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टैली बिकॉज हम लोग टैली के ऊपर कर रहे हैं। तो ये डेटा फोल्डर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ फोल्डर यहाँ पर आ जाता है और मैं इसको प्रोटेक्शन एनेबल कर देता हूँ और हाइड मार्क कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इधर हाइड मार्क करता हूँ कि डेटा का फोल्डर गायब हो जाता है। ये देखिए फोल्डर फिर से आ गया और ये फोल्डर फिर से हिडन हो गया। तो कोई भी आपका टैली का डेटा सर्च करता है तो उसको वो डेटा मिलेगा नहीं। यू कैन चेक हियर विंडोज कांट फाइंड डी टैली ERP, चेक द स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। इवन इफ आई ट्राई टू सर्च दैट डेटा इन द कमांड प्रॉम्प्ट पे भी मैं अगर वो डेटा सर्च करता हूँ देखिए एलिमेंट नॉट फाउंड। तो द फोल्डर एग्जिस्ट करता है पर किसी को मिलेगा नहीं सिर्फ फोल्डर कहाँ पर है। इस तरह से सिक्योरा में हम लोग फोल्डर लॉक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी आप कहेंगे कि फोल्डर तो लॉक कर दिए पर अभी टैली कैसे चलेगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। सो अलोंग विद द फोल्डर लॉक ऑप्शन वी हैव गिवन द प्रोग्राम फंक्शन ऑल्सो। तो कौन सा प्रोग्राम
टैली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वो मैं इधर प्लस बटन दबा के .exe वो ऐड कर सकता हूँ। सिलेक्ट एनी .exe फाइल। यहाँ पर मैंने tally.exe को ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और मैंने उसको परमिशन भी दिया हुआ है कि टैली का डेटा रीड करने के लिए। अभी मैं आपको टेम्परली ये डिसेबल करके टैली आपको बाहर से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। सो आई विल शो यू फ्रॉम आउटसाइड व्हेन आई ट्राई टू ओपन माय टैली डेटा। आई जस्ट ओपन द टैली एप्लीकेशन। And then when I go to the select company option, you can see no companies on the disk, क्योंकि ये फोल्डर मैंने लॉक करके रखा है सर। अभी मुझे सिक्योरा को मैं परमिशन देता हूँ, अलाउ करता हूँ वो फोल्डर एक्सेस करने के लिए। जैसे मैं एनेबल करता हूँ, ये आपको खाली फर्स्ट टाइम ही एक बार सेट करना है सर, बार बार करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट टू शोकेस यू द प्रोडक्ट आई एम डिसेबलिंग एंड एनेबलिंग इट। So once I go back to the select companies, you can see my list of companies are visible. तो अभी मैं इस पे जो भी काम करता हूँ थ्रू आउट द एंटायर डे, और जब भी मैं ये टैली क्लोज कर देता हूँ तभी ऑटोमेटिकली इसका बैकअप हो जाता है। बैकअप मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर बैकअप होता है, वेयर एग्जैक्टली द बैकअप इज टेकन, आई विल शो यू। सो विद एवरी सिक्योरा एप्लीकेशन वी प्रोवाइड यू 5 GB ऑफ क्लाउड स्पेस। हर लाइसेंस के साथ में आपको 5 GB का क्लाउड स्पेस मिलता है सिक्योरा का। सो बैकअप आप यहाँ पर सिक्योरा क्लाउड पे ले सकते हैं। अगर आपको सिक्योरा क्लाउड पे बैकअप नहीं लेना है, इन केस यू वांट टू टेक बैकअप इन योर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, दैट इज पॉसिबल, यू कैन टेक द बैकअप हियर। पर फायदा ये है सर, वॉट एवर बैकअप यू टेक हियर, आप जो भी बैकअप यहाँ पर लेते हैं आपका टैली का, दैट डेटा इज टोटली एनक्रिप्टेड। तो इन केस अगर आपका कोई गूगल ड्राइव कॉम्प्रोमाइज हो गया, गूगल ड्राइव आजकल इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आपका ईमेल का पासवर्ड मिल जाए किसी को तो भी। तो अगर आपका गूगल ड्राइव कॉम्प्रोमाइज हो गया या वन ड्राइव कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कोई भी डेटा आपका जो कॉपी भी कर लेगा तो वो भी ओपन नहीं कर पाएगा सर कहीं भी, बिकॉज दैट डेटा इज एनक्रिप्टेड बाय अ यूनिक की विच वी हैव प्रोवाइडेड इन दिस सिक्योर एप्लीकेशन। सो एवरी की, हर एक आदमी का लाइसेंस की अलग अलग होता है, और आपके की से जो भी डेटा एनक्रिप्ट होता है वो खाली आप ही ओपन कर सकते हैं सर, दूसरा कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से हम लोग टैली डेटा आपका प्रोटेक्ट करते हैं, और आपका जो भी बैकअप होता है वो इंक्रीमेंटल होता है सर। तो कल आपने जो बैकअप लिया है उसका भी वर्जन मैनेजर में आप वो रिकवर कर सकते हैं। परसों जो आपने बैकअप लिया वो भी आप वर्जन मैनेजर में से रिकवर कर सकते हैं। ये हमने क्यों दिया है कि कभी कभी क्या होता है कि गलती से एंट्रीज डिलीट हो जाती है अकाउंटेंट से, तो वो रिकवरी के लिए हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इंक्रीमेंटल बैकअप आपका लेते रहता है ये सिक्योर। सो ये सिंगल यूजर जो यूज कर रहे हैं मैंने उनके लिए बताया है। अभी मल्टी यूजर के लिए मैं आपको बताता हूँ सर। मल्टी यूजर में सिक्योरा के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सेटअप करना पड़ता है, जो कि हमने हमारे ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन में एक डेस्कटॉप में वो एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है। तो मैं मेरे ऑफिस के सिस्टम में कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। इस तरह से हम लोग टैली का मल्टी यूजर में डेटा प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर आप मल्टीपल लोकेशन से आपका टैली डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो दैट इज पॉसिबल। सो आई जस्ट गो टू द मास्टर सेटिंग्स एंड आई शो यू द टैली मल्टी यूजर हाउ इट वर्क्स। सो टेस्टिंग पर्पस के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस 7 कंपनीज। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 अकाउंटेंट है या 3 यूजर्स है हु वर्क ऑन टैली, एंड आई वांट टू गिव only this 4 companies to user 1, that I can do. Other user 2 I can give only these 3 companies, and user 3 is my main account person and I want to provide him with all the company. I can provide that also. And not just that sir, I can access my tally data from multiple location also. That is also possible in Secura. And also we give you few other options where you can control your employees data also. तो आपको एम्प्लॉय को कोई भी पासवर्ड नहीं देना है, आपको एडमिन कंट्रोल पैनल्स में ही यहाँ पर सेट करना है सर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिवाइस में वो टैली चला सकता है, वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पर कि खाली डेस्कटॉप में देना है।
फिर वो उसको व्हाइट लिस्ट ग्रे लिस्ट भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता है तो आपका जो डिवाइस वो यूज कर रहा है तो वी हैव द ऑप्शन टू बर्न दैट डिवाइस ऑल्सो। फोल्डर वाइज एक्सेस देना है तो फोल्डर वाइज एक्सेस आप दे सकते हैं। ड्राइव वाइज एक्सेस देना है तो ड्राइव वाइज एक्सेस दे सकते हैं। Also, there are some other ultra content protection we provide. I'll just show you. So there are some important. In suppose for an example, I have to provide my data in a CA firm. So what I can do is I can encrypt my data and can send the data, and your data will be totally protected, sir. So all the incoming and outgoing emails you can protect. And not just your emails, you can protect all your Tally data as well. So now I have almost given you how the Tally data security and email security we provide in Secura. Anyone has any questions? Amit sir, कोई question है आपके? Gopal sir, any questions? सर Hello. अभी एक बार रिपीट करो सर, वो कैसा वो हाइड करना है वो डेटा फोल्डर? आप सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं कि मल्टी यूजर सर? सिंगल यूजर का सर। सिंगल यूजर ना, तो मैं सिंगल यूजर में आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट। ये देखिए सर, सिंगल यूजर में आपका जनरल डेटा इस तरह से होता है, बराबर, टैली में। ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका डेटा फोल्डर गायब है, क्योंकि मैंने उसमें एक्टिवेट फोल्डर लॉक फीचर किया हुआ है। ओके एक बार मैं फिर से आपको अनहाइड करके दिखाता हूँ। फिर ये एक्टिवेट फोल्डर लॉक फीचर है। ओके ये मेरा डेटा फोल्डर है सर, इसको मैं टेम्परेरी डिसेबल करता हूँ प्रोटेक्शन। एनेबल डिसेबल। ओके ये देखिए, ये डेटा का फोल्डर रहता है, बराबर, जनरली आपके Yes, सिस्टम में, और ये आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज रहती है। ओके तो मैं प्लस बटन दबा के वो फोल्डर को पहले ऐड कर लेता हूँ सिक्यूरा में। ओके यहाँ पर मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, तो आप देखेंगे कि ये डेटा फोल्डर इधर आ गया। हाँ अभी मैं इसको प्रोटेक्शन एनेबल करता हूँ और मैं इसको हाइड भी कर देता हूँ सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा फोल्डर है, जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये डेटा फोल्डर यहाँ से गायब हो। हाइड होता है। ओके फाइन फाइन सर। हाँ, तो ये फोल्डर गायब हो गया, पर अभी टैली कैसे चलेगा सर? फोल्डर को तो हम लोग ने लॉक कर दिया, तो फोल्डर लॉक के साथ में हमने प्रोग्राम का भी फंक्शन दिया है, और प्रोग्राम फंक्शन में मैं टैली को एनेबल करता हूँ कि वो डेटा फोल्डर रीड करने के लिए। ओके अगर मैं इसको डिसेबल करूंगा सर तो वो टैली नहीं चलेगा। बाहर से मैं आपको चला के दिखाता हूँ टैली। हाँ नहीं तो कोई अगर ये देखिए tally.erp में जाता हूँ, सिलेक्ट कंपनीज में जब भी जाता हूँ, दिख रहा है आपको नो कंपनीज ऑन लिस्ट? हाँ नो कंपनी। ओके ठीक है, अभी मैं फिर से एनेबल करता हूँ टैली को। ये एक ही बार करने का सर, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। जब भी स्टार्ट में जब भी सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक चलते रहेगा। ओके ओके और वो जैसे ही आप टैली क्लोज करेंगे उसका बैकअप ले लेगा वो। हाँ हाँ प्रोग्राम। ये tally.exe को मैं एनेबल करता हूँ। ये किया एनेबल। अभी मैं टैली पे फिर से जाता हूँ ओके और सिलेक्ट कंपनीज करता हूँ, तो आपका डेटा आ गया सर। ओके अभी यहाँ पे दिख रहा है ना सर? अभी मैं वो टैली फोल्डर में जाकर वहाँ पे देखने के बाद वो टैली फोल्डर आता है ना, डेटा फोल्डर आता है क्या? नहीं सर? नहीं ना, अभी नहीं दिखेगा ना सर आपको। इधर ये देखिए ना, यहाँ पर से गायब है वो, ओके हिडन है वो। हाँ ओके फाइन फाइन सर फाइन फाइन। हाँ, तो यहाँ पर से जनरली क्या होता है कि यही डेटा फोल्डर कोई भी आपको कॉपी करके लेके जाता है। ओके या तो रैंसमवेयर अटैक भी यहीं पे होता है सर। अभी सर, ओके, डेटा नहीं है अवेलेबल। ये देखिए, किसी को सर्च करने से डेटा ही नहीं मिल रहा है वो,
हाँ हाँ तो कैसे रैंसमवेयर अटैक भी होगा या कोई कॉपी कर लेगा। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू। इस तरह से हम लोग को प्रोटेक्शन देते हैं सर। और खाली प्रोटेक्शन ही नहीं देते सर, हम लोग आपको ऑटोमेटिक बैकअप भी देते हैं। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू। क्या होता है, टैली डेटा करप्ट हो जाता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, पेन ड्राइव करप्ट हो जाता है, उस केस में भी आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहता है सर। हेलो। तो अमित सर, अभी एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? हाँ सर, ये जो आपने ईमेल प्रोटेक्शन का बताया है, तो दिस इज प्रोटेक्शन इज वैलिड फॉर मतलब जो गूगल मेल, जीमेल है या हॉटमेल है, यस यस मतलब उस पे भी ये काम करेगा क्या? यस यस कर सकते हैं सर। मतलब वो जो है दैट वी एक्सेस फ्रॉम द ब्राउजर, तो मतलब ब्राउजर पर भी कंट्रोल रहेगा क्या उसका? जनरली कैसा रहता है सर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका कैसे चलता है उसी तरह से हमारा ये सिक्योरा का चलता है। तो आप इस पे आपका जीमेल, याहू कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ईमेल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप इम्पोर्टेंट ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरह से फिर उसका मेल अकाउंट मतलब वो करना पड़ेगा, मतलब अभी तो हम जैसे नॉर्मल ब्राउजर में जाके ही मतलब उसको एक्सेस करते हैं, लेकिन अगर उसको प्रोटेक्शन में करना है तो अपने को आउटलुक जैसे फॉर्मेट से करना पड़ेगा। यस यस, जैसे आउटलुक काम करता है सर, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है ये भी, पर खाली की टू की ट्रांसफर प्रोसेस है हमारा, कि जब भी आपका ईमेल ट्रैवल करता है उसके साथ में हमारा सिक्योर को की भी ट्रैवल करता है सर। हम लोग लॉक करके भेजते हैं आपके ईमेल को। नहीं, पर मतलब अगर उसके पास पासवर्ड है तो वो मतलब ब्राउजर बाहर से भी तो एक्सेस कर सकता है ना? हाँ कर सकता है। यस हाँ, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रही फिर? मतलब यहाँ का डाटा नहीं उठा के डाल पाएगा शायद तक वो, इतना ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ यस, मैं वही बोल रहा हूँ। डाटा लेना है तो वो तो मतलब किसी और ईमेल आईडी पे ट्रांसफर करके भी जा सकता है ना? लिया जा सकता है सर, वो कभी लिया जा सकता है कि जब भी आप अकेले यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी। अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 5 लोग काम करते हैं, बराबर? तो आपको उनको जीमेल का पासवर्ड देना ही नहीं है सर। अच्छा, ओके। आपको जीमेल का पासवर्ड मतलब देना ही नहीं है। मतलब आपको अभी खाली यहाँ पूरा पर मतलब एडमिन सर, कंट्रोल पैनल से आपको सेट करना है उनका जीमेल आईडीज। नहीं, अगर मेरे को ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मेरे को मेरे जितने भी मेरे 8-10 वर्क स्टेशन है सब पे करना पड़ेगा, यस सर, राइट? अगर आपको मतलब फुल फीचर चाहिए तो ईमेल सिक्योरिटी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, खाली ओके, टैली डेटा सिक्योरिटी चाहिए आपको, हाँ हाँ, तो खाली जो अकाउंटेंट यूज कर रहे हैं उसमें कर सकते हो आप। मतलब जो सर्वर है उसके ऊपर ही ये इंस्टॉल करें खाली? सर्वर पे नहीं इंस्टॉल करना है सर आपको, ये तो कहाँ इंस्टॉल करना है? ये आपके मतलब यूजर सर्वर, के पीसी में इंस्टॉल करना है। हाँ अगर जी, एक खाली किसमें आपको टैली के लिए यूज करना है तो कहाँ पे करना है सर? तो आपको खाली टैली डेटा प्रोटेक्शन चाहिए कि कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए सर? मान लो खाली पहली डेटा प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन चाहिए तो कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको? तो जो अकाउंटेंट यूज कर रहा है सर, नहीं, मेरे तो सिस्टम 5-6 में जने आपको यूज ये करते हैं इंस्टॉल ना। करना पड़ेगा। मेरे तो 5-6 जने यूज करते हैं, 8 जने यूज करते हैं राजा। हाँ तो सर फिर सबके इसमें करना पड़ेगा। हाँ, सब पे ही करना पड़ेगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ यस ना कि यस, सब मतलब पे करना पड़ेगा। यस, ये जितने भी वर्क स्टेशन है सब पे करना पड़ेगा। सब पे करना पड़ेगा। हाँ, तो चाहे वो ईमेल वाला लूँ चाहे मैं टेली का लूँ, तो भी मेरे को आई हैव टू डू इट ऑन ऑल ऑल द। वर्क स्टेशंस, करेक्ट करेक्ट। आपके चार्जेस कैसे रहेंगे पर? सर ये आपके जो लोकल पार्टनर है वो आपको चार्जेस बताएंगे। आपकी आप किससे किसके रेफरेंस से आया सर? मेरे को तो मेल आया था सर आपका, आई डोंट नो किसके नाम से। ओके, मेल आया था क्या? हम्म। नो नो इश्यू सर। आपका कांटेक्ट नंबर बता सकते हो सर? हाँ, मैं है ना पर्सनल चैट पे बात करता हूँ आगे इसके बारे में जरा, क्योंकि मेरे कुछ कॉल्स चालू हैं तो। हाँ तो आपका मैं नंबर बताइए सर। 98202 98202 17456 174 56। 56। ओके, नो इश्यू। तो विल कनेक्ट ऑन अ कॉल। या तो कोई क्वेरीज है अमित सर? नहीं, अभी तो सर कुछ नहीं है, फिर पर्सनली फिर बात करते हैं थोड़ा सा समझने के बाद। नॉट एन इश्यू। हेलो, हेलो सर। यस यस गोपाल सर, टेल मी। सर अभी 3 कंपनी है ना वहाँ पे। हाँ हाँ अभी हम हमारा कस्टमर पूछता है मुझको एक ही कंपनी को हाइड करना है। हाँ ओके, वो हमारा पर्सनल रहता है, वो 2 कंपनी का रहता है।
वो कैसा हाइड करना है सर? एक ही कंपनी हाइड करना पड़ेगा? समझ गया सर मैं, यस। तो इसमें प्राइवेट एरिया आता है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। वो उसका अकाउंट भी उसको मेंटेन करने का है ना सर, बराबर ना? हाँ हाँ, यस सर, यस। यस, ओके। तो सिक्योरा के साथ में जब भी आप नॉर्मल पास लॉग इन करते हैं सर, तभी आपको हाँ। नॉर्मल डेटा विजिबल होता है। ओके। और एक और पासवर्ड आता है जो हम लोग ने, आपका जो प्राइवेट डेटा है, जो नंबर हाँ। 2 डेटा या बी डेटा आप Yeah. जो बोलते हैं, यस 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 यस। वो एक यहाँ पर रख सकते हैं प्राइवेट एरिया में। ओके, फाइन सर। तो इन केस इफ द IT raid happens sir, you don't need to worry. ओके They won't be able to find that data sir. ओके। That is your concern, right Gopal sir? यस यस यस। So that when I give you this product sir, when I install in your system, ओके Satish sir has told me to coordinate with you. ओके ओके, फाइन सर, फाइन। So once you install this product, I'll explain you the in the product training sir. ओके, फाइन सर, नो प्रॉब्लम। Any other questions you have Gopal sir? नो सर, नो सर, नो। So Gopal sir, now you have seen the product. What do you think sir? यस सर, अभी कस्टमर को बोलने को अच्छा रहता है सर ये। तो अभी इंक्वायरी चल रहा है सर मेरा पास अभी, तो सिक्योरिटी Okay. लेवल पे। अभी मैं ये करता हूँ सर, मैं अभी वो पहला वो इंस्टॉल करता हूँ हमारे सिस्टम में। बाद में वो देखने के बाद वो कस्टमर को पिच करता हूँ सर, कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो कभी करना है सर? आज ही करते हैं इंस्टॉलेशन? हाँ, आज ही करता हूँ सर। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको ये मीटिंग होने के बाद। ओके ओके ओके, फाइन। ओके। और कोई टेक्निकल क्वेश्चन है सर प्रोडक्ट रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं, कुछ भी नहीं सर, थैंक यू। मैं आपको और एक फीचर दिखाता हूँ सर, इसमें हाँ। ऑटोमेटिक बैकअप भी है। ओके ये देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर है, ये प्रकाश डेटा मेरा इंपॉर्टेंट फोल्डर है, हाँ इस हाँ। तरह मैं इंपॉर्टेंट डेटा रखता हूँ, तो आई कैन जस्ट मार्क दिस फोल्डर एज ऑटो सिंक क्लाउड फोल्डर। मतलब जो भी मैं इस पे कॉपी करता हूँ डेटा, उसको ऑटोमेटिकली क्लाउड पे बैकअप हो जाएगा सर। ओके। और रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी इसको मैं एनेबल कर सकता हूँ। तो ये एक फीचर भी है। सो द प्रोडक्ट इज वेरी वास्ट गोपाल सर, वी विल slowly and steadily help you with the product training and all the features. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, all right. So shall we conclude this meeting sir? Can we close this meeting? ओके सर, थैंक यू। Yes, okay Gopal sir, thank you. Thank you, Gopal sir.